10 knowledge areas pertains to time, cost, and scope. This is the triangle. And this is the triple constraint which we say. So time, cost, and scope. These knowledge areas needs to be addressed at the start. Then quality comes in between. Risk, human resources, communication, procurement, and stakeholder. And then integration of all these 9 as an integration knowledge area. First of all, let me introduce myself. I am Manoj Kumar Raspal, Senior Professor Civil at EDTEM. I am from 1993 IRSC batch. And the main speaker, Sri Kazi Miraj Ahmad, is presently posted as ADG RDSO. He is of 1991 IRSC batch. He has a very wide experience of both working in open line and construction. And he has worked in different railway, NWR, Central Railway, WCR Railway. He has also worked as a senior professor at EDTEM itself, and he has covered a lot of topic during his tenure at EDTEM. So he has a wide experience in teaching also. And he has been a member of various renowned organizations of all over world. So he has a very good technical and all type of experience with him. So he will very able to explain the principle of project management very is good way. So I request now Sri Kazi Miraj Ahmad to kindly take over the and start giving his lecture. Good afternoon, everybody. So I suppose that they have a fair background, fair experience of handling the projects. I just wanted to ask how many of them have handled a project. So I don't know whether I can get a response. Okay, no issues. Yes, sir. I take it for granted. I take it for granted that people have an exposure to projects in their day-to-day life. And for example, if they are watching this webinar from the realm of their office, even this itself is a project, because from some location they have to organize the link. From some of the officers they have to get the permission, or at least informing them that they are going to participate. They would have locate some of the offices where they can sit and listen in a relatively cohesive atmosphere. So every one of us do undertake projects, and project per se does not have a dimension that it can only be of it can only be when something has to be done with brick and sand and cement. So project as a concept we are handling day in, day out, and that is the first thing which I wanted to emphasize. Now let us fix our learning objectives for next about 1.5 hours or so, whatever we are going to participate, going to do here. And the end of this participation, I want, and we want that the participant, each one of you, should be able to describe what is the Project Management Institute principles and why they are useful to be followed. Second is the project management terms. We have to move from the project administration to project management discipline. And since our audiences, all of you are either decision makers or the field implementers. So if we have a terminology which is understood across all the departments in across all the railways and zones, as it is PM Project Management Institute, that is the international body, they have a structured PMI which is non-negotiable. So the tools which are applied, like work breakdown structure, effective value management, risk matrix. So if we know these terms, so then across the board we can apply these terms, and that can be understood in the same perspective. So today
every one of us can note down, and every one of us must be able to describe in their own words what are these project management terms, like project charter, what is triple constraint, uh, project management plan. Many of us may be knowing all these terms, but many of us may not be knowing these terms. So if we note it down here during the course of our discussion, if these points do come, if these words do come, then we can understand the meaning of the words in the right perspective. Then work breakdown structure, that is WBS, EVM, value management, effective value management, gold plating. How many of you might be knowing gold plating? Anybody can unmute? Yeah. Anybody can unmute and speak? I think so many of them have not heard, sir. Not heard. Okay. So gold plating is basically, suppose somebody is asked to deliver a car, maybe in the range of 8-10 lakhs rupees, which should have a certain maximum, minimum speed and everything. So the manager which has developed the car, what he did that, I mean, besides providing on all those aspects, technical parameters which were necessary, he also gold plated the complete car. So it was looking fabulous. But gold plating per se, that is, that is not what the customers have asked in the cost or in the scope or in the time limit which it was contemplated. So gold plating is basically doing beyond what is asked or what is necessary to be done. So as a project management principle, we have also to stay away from such practices as gold plating. So similar other words we will be learning throughout the this session: responsibility assignment matrix, conflict management, then risk probability and impact matrix, contract type, and stakeholder power versus interest grid. So these are the some terms which are used invariably across the project management field. Then there are 5 process groups: initiation, planning, executing, then monitoring and controlling, and closing. So there are 5 distinct process groups. Initiate, some project is initiated, then it is planned, then execution is done, monitoring and controlling is done, and then closing. So we have to understand that whenever we plan a project, we have to go across all these 5 process groups. Then there are 10 knowledge areas that we have to understand at this juncture, that the 10 knowledge areas pertains to, let us integration, let us keep it for the end. Time, cost, and scope. This is the triangle. This is the triple constraint which we say. So time, cost, and scope, these knowledge areas needs to be addressed at the start. Then quality comes in between, risk, human resources, communication, procurement, and stakeholder. And then integration of all these 9 as an integration knowledge area. So each of the knowledge area has to be addressed depending upon the scale of the project, and the subject expert of all these things should prepare their planning in all these knowledge areas, and then the project manager has to do the integration of all these knowledge areas, so that becomes the comprehensive planning. So initiation, planning, execution, monitoring and control, and closing, and within these 10 knowledge areas, they are the crux of project management principles. Then we need to have the code of ethics and professional conduct. Okay, now this is anybody can speak. What is this? One person may Chenab Bridge. Chenab Bridge. Chenab Bridge. Okay, very nice, wonderful. So this Chenab Bridge is part of the USBRL project. Many of us must have visited or might have seen it recently being commissioned. The original cost of it was
was around 2,500 crore to 3,000 crore way back in 1994. Do you know how when it was sanctioned? Anybody can speak? '96, I It think. was first time figured in IRP in the project sanctioning in 1994. In 1998, one of the estimate was sanctioned. In 2002, it was made as the project of national importance, and funds were started um, flowing for it. So since 1994 to 2024-25, when it is commissioned, I mean, it took around 30 years to really commission. And when the tender was invited in 2004 for the Chenab Bridge, for a few other bridges, and so then the time period for completion given was 30 months. That was up to February 2007. So had we planned the commissioning in, let's say, a reasonable period, maybe 5 years, 7 years, 8, 10 years, then we would have completed it within that time scope time. But actually, it took so much of time. And the cost escalation from 2,500 crore to now the cost is somewhere, I mean, 41,000 crore is already spent. And I mean, it is likely to increase beyond to 65,000 crore or something like that after all the arbitrations and all. So there's a huge time and cost overrun, but the satisfaction about this entire project is that it is absolutely a marvel for the quality which it stands. I mean, international world class quality in all aspect of this project has been really executed at site. This wonder, this Chenab Bridge, that is 359 meter above the water, that is absolutely engineering marvel with respect to all of the aspects of its, and throughout the process of this project has been absolutely free of any of the incidences. But from the project management principles point of view, we could have done better to contain it within the projected time and cost and scope of the works. So similarly, at our divisional level or at our zonal level, there are several projects which are showing cost overrun or time overrun. So we have a mixed feeling how to handle those. Is everybody aware that there may be a lot of projects within in their knowledge which are not progressing as conceived in the IRPSM? Anybody can speak? Yeah. Can anybody speak? So there are a lot of projects. There are a lot of projects. Okay. Yeah, definitely. So these facts and figures, there was a joint report of PMI and KPMG on infrastructure projects in India in June 2019. They have said that around 36% of the projects show cost overrun and around 54% of the projects show time overrun on an average for its project portfolio. So this is a concerning trend. This is just about the bigger projects. In our day-to-day projects at the divisional level, I mean, we have a lot of cost overrun and time overrun, and which is a cause of concern. Now, the project completed are just 5,000 number. IRPSM, अगर आप लोगों ने देखा होगा, so the project completed are just 5,000 number, yani around 12% of the total projects. And there are staggering 88% of the project they are showing continually going. So this is also so these issues. And then there is one concerning trend that the estimate not sanctioned for the project was showing 8,000 numbers. That was amounting to 5 lakh crore rupees.
I mean, can we conceive that estimate not sanctioned, but still, projects are undergoing? So but this is a fact, and that is happening. So this is what I say is not an isolated case of inefficiency, but it is a system issue. And the root cause is front end planning weakness. I mean, ये ऐसा कोई नहीं है कि there are incompetent people, they are showing inefficiency. It is because it is inbuilt as a system issue, system problem, and how we handle the projects. And because of these systematic issues, such problems are accumulating over the years. And in fact, if we don't make ourselves aware to the basic principles of the project management, such problems are going to be aggravated, and they are going to be, make us more uncomfortable in the days to come. Okay. So basically, what happens is that when the projects are not completed, or the value is not delivered to the customer, a lot of capital is blocked, and that increases the opportunity cost. So portfolio rationalization is urgently needed, and we need to introduce the portfolio management thinking in our project management. Now let us look at some common causes of the failure. And this is, every one of us may definitely throw light on it, that there may be several causes why a particular project has failed, has not performed as to the satisfaction. But similarly, at that same time, we are contributing to delay in the project or mishandling of the project somewhere else. So there are common causes of failure like pre-tender weak DPR or inadequate soil investigation, no utility mapping. During the execution, scope creep, because we don't take projects as a project, we take it as a time as an operation. There are a lot of project creep. Whenever an authority comes, he start thinking fresh on the project and start adding the things which will have implication on the overall project management itself. So scope creep is one of the problem. Fund fragmentation, a lot of very less funds are allocated for many of the projects, which doesn't funds as well as resources, so that how it is conceived that the project is not going to be completed as being planned by the people at the lower level. And then team instability also adds to also a lot of these causes. They leads to project mismanagement. Similarly, for different process groups, there may be a lot of reasons for the project mismanagement, and we all might be knowing it very well. So first thing is that admitting to that these things do matter, and then only we can plan that how can a better project management can be achieved. Indian government has given a lot of input, a lot of thought process has gone into about how to undertake the infra governance as theme, because the government has gone into the detail of why these projects are really lagging, and not only in one department but across the different organizations. So we have come up with the 9 themes for infra government. Now, the first thing which is shown in red is about intersectoral coordination and planning, that is missing. Land acquisition, statutory clearances, resettlement and rehabilitation, project preparedness, green, resilient, inclusive infrastructure. So development that comes under Gati Shakti. Many of you might be knowing that there is a Gati Shakti in Prime Minister office that monitors the projects over 500 crore rupees, and there all the state governments, all the stakeholder departments and ministries, those projects are monitored, and really it has given a boost in completion of these projects on a fast timeline. In railways, Gati Shakti
Gati Shakti is also introduced, but and that has not really got the pace at which it is introduced in Prime Minister office and it is being implemented. So really we have to catch up with all these because these are the intersectoral planning, land issues, project preparedness. All these are the real issues which need to be addressed, and that when major projects are there, they are the major cause for delay or creeps. Then outcome and output linked approach is being monitored. Then planning and implementation capacity, you might be having and listening to that project capacity building commission is there in India, and many of you must have taken a lot of IGOT courses and Mission Karm Yogi, Master Karm Yogi and Mission Karm Yogi training, many of us must have undergone through it, and that is really changing the landscape of our preparedness for the projects, and that is making our resources project ready. Now, for the finance, public-private partnership, venture capitalist funding, and the national monetization pipeline, that is, removing the hindrances in the flow of the finance, and there's a huge cache of funds are available these days for capital development and for various infrastructure developmental projects. Legal also reconciliation mechanism, and Ministry of Corporate Affairs has come with legal relaxation so that the money should not be locked or blocked in small trivial issues between the contractors and in the government departments and all. Major money should be released, and the issues must be settled with the congenial environment keeping in view. Similarly, project management practices with BIM and PDPI, project development, and that is also being enforced. How many of you are knowing the BIM part of it? Building information modeling. How many of you are aware of this term? Yes, sir. Building information modeling. इसमें I'll give you the concept that BIM, there are 3 dimensions X, Y, Z. So if we prepare a plan in 3 dimension, that is 3 dimension. The 4th dimension of BIM is duration, timeline, and scheduling. So that 4th dimension is time. X, Y, Z, then 4th dimension is time. 5th dimension is cost estimation, analysis, and budgetary tracking. So the cost part of it comes into the 5th dimension. Then 6th dimension, that how to make a structure self-sustainable and energy efficient. So that sustainability and energy efficiency come as a 6th dimension. And then 7th dimension of BIM is that how to make a holistic facility management information for the entire life cycle of the project. So these concepts which are incorporated with the artificial intelligence and with the digital transformation are really transforming how the way we have to handle the projects in the future. So we have come to the basic issue of defining what is a project. So the project is a temporary endeavor. It cannot be permanent. It is a temporary endeavor that is undertaken to create a unique product, service, or results. So projects are undertaken to achieve an objective. Projects are a set of coordinated and control activities. Projects have a start and a finish date. I mean, many of our projects keep on running and going and going. It should not be the case. It should have a fixed start finish dates, and that may be okay. That may be that may be replanned, but invariably some date should be start, some day should be the finish date. Then the project should conform to the specific requirement, including the constraints of time, cost, risk, scope, and resources, everything. And then it requires cross-functional team and interdisciplinary approach. Okay. So in this context, what is a project management?
project management is the systematic integration of tools, governance, and leadership. And this as a profession has emerged after World War II. And then infrastructure formalizes PMI framework here. But many a time we misunderstand project management. Project management is not only managing or buying a software or scheduling, preparing a bar chart and giving progress report or coordinating work and communicating. A myth is there that is for engineers only. That is not the case. Project management is a science. That is also a myth. It is really an art also. It is a science, yes, but it is an art also. And that art is there to a varying degree among various stakeholders. So project management is not only these, but also much more beyond it. And that is an integration of all these. Now, program and portfolio management, like we understand that there are at the lower level, there are a lot of projects. All the projects, they combine together and are looked after at the program level, and then all the programs and some projects, they are strategically looked after at the strategic benefits at the business plan level. So project and then programs encompasses all these, and then portfolio encompasses all these. In railways, the project at railway board level, the strategic alignment comes in the portfolio part of it. At the zonal level or the GM level, the coordinated execution of the programs are looked after, and then individual execution by the respective construction units or the divisional level, that is done. So now let us try to understand the difference between project versus operations. And the difference between project and operations is operations sustain, while the project, they transform the things. So basically, project is temporary, unique, terminates when the current objectives are met. Operations are ongoing, repetitive, and does not terminate. So railway culture is operationally very heavy. It is heavily loaded in the directions of operations. Yes, correct. We are in the business of operations or the logistic transportations. So we have to be operationally heavy. But whenever we take a project, our project culture, which is relatively project and operation, and then so basically we have to develop our project culture, and that cannot be said that since we are basically into the business of operations, so we cannot we should be operationally heavy. Projects have to be given. हेलो सर, हेलो आवाज आ रही है? सर, कह रहे क्या हिंदी में बताया जा सकता है? अच्छा, तो प्रोजेक्ट जो ऑपरेशंस के तरफ जो है बहुत ज्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस दी गई है, उसके बजाय हमको प्रोजेक्ट कल्चर को भी डेवलप करना है वेर एवर वी आर हैंडलिंग द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ओके. नाउ अब इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज दैट वी हैव अ ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी, वी हैव अ ग्रेटर स्टेक होल्डर. हमें फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए एडवांटेजेस होता है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर कंट्रोल मिलता है. इससे कस्टमर रिलेशंस इंप्रूव होते हैं. डेवलपमेंटल जो उसको डेवलप करने का जो टाइम है वो कम हो जाता है. हाई प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और इससे इंटरनल कोऑर्डिनेशन और जो वर्कर्स हैं उनके मोरल को बूस्ट करने का ज्यादा बेटर तरीका होता है अगर फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए तो. अब इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जो है, जैसे इस फोटो में दिख रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो है, एक तो टाइम के ऊपर उसको पूरा ध्यान रखना होता है. कोड्स एंड मैनुअल्स जो है उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना होता है ताकि किसी भी नीति का या किसी भी इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन ना हो. उसको अपने रिसोर्सेज को भी रिकूप करके रखना होता है.
उसको प्रेजेंटेशंस भी करने होते हैं, उसको बजट भी जो है वो देखना होता है, और फंड्स पे भी नजर रखनी होती है, इनका प्रेजेंटेशन करना होता है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर के अगर 8 हाथ 10 हाथ होते तो वो इन सबको यूज करना पड़ता उसको। तो इसमें नॉलेज एंड जो प्रोजेक्ट मैनेजर है बेसिकली वो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, नॉलेज और पर्सनल स्किल जो होती हैं, इन तीनों का के लिए जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की कंपिटेंसी से, नॉलेज कंपिटेंसी से और पर्सनल स्किल्स की कंपिटेंसी से वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करता है। तो जो इन चीजों का अच्छे भली भांति उपयोग करता है अपने परफॉर्मेंस की स्किल का, नॉलेज स्किल का और पर्सनल स्किल्स का, तो वो बेटर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो नॉलेज और जो स्किल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, नॉलेज क्या है यानी कि ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि 5 जो प्रोसेस ग्रुप्स थे, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजर। और 10 जो नॉलेज एरियाज थे, कितने लोग बता पाएंगे? टाइम, कॉस्ट, स्कोप, क्वालिटी, देन स्टेक होल्डर्स, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, आपके रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज। तो ये जो 5 प्रोसेस ग्रुप्स और 10 नॉलेज एरियाज हैं, उनमें उसको नॉलेज बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। फिर उसके बाद से पर्सनल स्किल होती है, किसी में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कैसे बात को कहना है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, नेगोशिएशन, मध्यस्थता की भावना, इन्फ्लुएंसिंग, कैसे दूसरे को जो है आप अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से कोचिंग करते हैं, किस प्रकार से विश्वास बनाते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, पॉलिटिकल एंड कल्चर अवेयरनेस। तो ये पर्सनल स्किल सब में डेवलप होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये जो पर्सनल स्किल है और जो नॉलेज है, इनके बीच में एक बैलेंस रखना होता है। जो किसी भी प्रोजेक्ट में जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो जैसे कुछ आपस में एक दूसरे के बीच में सहभागिता की जो भावना है, जो बिलीव्स हैं या प्लानिंग है, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर टाटा में, रतन टाटा जी का भी कुछ दिनों पहले देहांत हुआ था, तो उनका जब नाम आता है तो किस प्रकार की भावना आप लोग के मन में आती है? कोई बताए? हेलो हेलो। हेलो हेलो जब सर टाटा रतन टाटा ग्रेट विजनरी, we take it as a great visionary and a वेरी गुड, वेरी गुड, philanthropist sir. Yes sir. वेरी गुड। मतलब एक उन्होंने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जो इस भी कंपनी को A चलाते very, थे, उसको a very humble human being. इथिक्स के साथ और अच्छे से, मतलब जो बिजनेस में भी फायदा होता होगा, लेकिन इथिक्स और तमाम सारी चीजों को भी बहुत अच्छे से जो है उसको मॉनिटर करते थे, और मतलब उसको उन्होंने उसका एग्जाम्पल पेश किया। और लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत तेजी से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनका जब नाम सामने आता है तो एक भावना जो है वो उतनी पॉजिटिव नहीं आती जितनी रतन टाटा जी के लिए आती होगी। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से जैसे रेलवे है, रेलवे का भी अपना एक कल्चर है, अपना एक स्ट्रक्चर है, इसमें सारे प्रोसेसेस लेड डाउन हैं, नॉलेज बेस बहुत ह्यूज है। तो रेलवे का भी जो अपना परफॉर्मेंस है, तो रेलवे के को लेकर के एक एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर अपना आता है। तो इसी प्रकार से जो भी एक प्रोजेक्ट कोई आप करते हैं, तो एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो उसमें काम करता है कि किस प्रकार से कितना वो लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, वो कितने अपने आदर्शों को सामने रखते हैं, और कितना अपने उद्देश्यों की अनुपालना करते हैं। तो
इसके बाद से जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप है, उसके जो पार्ट थे, उसके जो डिफरेंट अवयव थे, उसके डिफरेंट जो भाग थे, वो थे इनिशिएटिंग प्रोसेस, देन प्लानिंग प्रोसेस, एंड प्लानिंग के दौरान फिर जो है साथ ही साथ एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी चलता रहता है, और इन दोनों के साथ में जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब का जो है वो प्रोसेस एक होता रहता है। और तब जब ये मॉनिटर एंड कंट्रोल के बाद लगता है कि ये प्रोजेक्ट अपनी तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है, अपने उद्देश्यों को पूर्ति के हिसाब से कंप्लीट हो गया, तब उसकी क्लोजिंग प्रोसेस होती है। तो ये पांचों प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन ग्रीन से जो दिखाया है वो इनिशिएशन का शुरू में जो है आपका टाइम के साथ जो भी प्रोजेक्ट चार्टर है वो बनाना होता है, तो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है और फिर क्लोज होता है। साथ ही साथ जो है ब्लू लाइन से प्लानिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। कुछ दिन के बाद ये काफी पीक पर आती है, जो भी आपके 10 नॉलेज एरियाज हैं उनकी प्लानिंग प्रोसेस जो है वो बहुत पीक पर आती है। फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे कम होती है, और इन द मीनवाइल ये रेड से एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो जो एक्चुअल में डिलीवरी है जो भी प्रोजेक्ट की, वो स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही प्रोजेक्ट डिलीवरी स्टार्ट होती है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वैसे ही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी साथ ही साथ चलता रहता है। तो प्लानिंग जब एक बार मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से सिग्नल मिलने लगते हैं कि अब आपका काम प्लानिंग का कंप्लीट हो गया है, तो वो प्लानिंग वहां पे फिनिश हो जाती है। फिर फाइनली जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना है वो अपना फाइनली एग्जीक्यूट होता है। उसकी वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग कंट्रोल थोड़ा आगे तक चलती है, और उसके बाद लास्ट में प्रोजेक्ट को प्रॉपरली क्लोज करना होता है। तो ये जो है एक बेसिक साइकिल है। प्लान यानी कि अपनी इसका प्लानिंग करें, डू मतलब एग्जीक्यूट करें, चेक करें और एक्ट करें। तो PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये लगातार चलता रहता है। तो किसी भी प्रोसेस में पहले इनिशिएशन हुआ, प्लानिंग हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अगर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के दौरान हमें लगा कि जो काम हो रहा है उसमें कोई चेंज चाहिए, तो क्या करना चाहिए? वी हैव टू गो बैक टू द प्लानिंग टेबल अगेन। हमको वापस प्लानिंग पर जाना चाहिए। और अगर लगता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अगर ये नो है तो देन एग्जीक्यूशन पे जाना चाहिए, और अगर यस है तो फिर क्लोजिंग पे। जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के दौरान या कभी भी ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई चेंज चाहिए, तो हम लोगों को ये लगता है कि हमें तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमें 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का है, 5 साल का है, तो कर लो, इसको देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। जबकि हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू गो बैक टू द प्लानिंग पार्ट ऑफ इट। तो प्लानिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर शुरू में जैसे बहुत सारे जो अच्छे परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका DMRC ले लीजिए, UPMRCTC ले लीजिए, या अभी RRTS का बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो ये सब जो है, इनमें क्या होता है कि 60 से 70% जो टाइम है वो प्लानिंग प्रोसेस में जाता है शुरू का। जितना आपने एग्जॉस्टिवली, जितना बेहतरीन तरीके से, जितना हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, रिस्क को ध्यान में रखते हुए, फंड्स, टाइम, कॉस्ट, नॉलेज एरिया, प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा, स्टेक होल्डर्स को मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब चीजें जब तक हमने प्लानिंग में नहीं तैयार करेंगे और इन सब के बिना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे, तो फिर जो है वो प्रोजेक्ट ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो करीब 60% से 80% टाइम को हमको कहाँ लगाना चाहिए? प्लानिंग में लगाना चाहिए। अगर हम प्लानिंग में जितना, तो फिर बाद में ये सब चीजें बहुत इजी हो जाती है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। अभी उल्टा होता है, अभी 20% भी टाइम नहीं लगता है प्लानिंग में, और हम लोग तुरंत ही जो है टेंडर वेंडर करते हैं और तमाम सारी चीजें कर लेते हैं, जो कि पूरे पूरे कंसेप्ट को उल्टा कर देता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू डू द प्लानिंग एग्जॉस्टिवली, और अगर कभी चेंज चाहिए तो देन अगेन वी हैव टू गो बैक टू द प्लानिंग टेबल, एंड जो भी 10 नॉलेज एरियाज हैं उनको फिर से प्लान करना चाहिए, और तब फिर एग्जीक्यूशन पर जाना चाहिए। हमें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जस्ट कि नहीं चलो ठीक है कर लो, या कोई भी छोटा ऑफिसर नीचे लेवल पे निर्णय ले ले, ये ठीक नहीं है। जब कंप्लीट हो जाता है देन वी हैव टू गो टू द कंप्लीशन स्टेज। तो इसमें जो
ये प्रोसेस ग्रुप है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, इनपुट्स, टूल्स, टेक्निक्स एंड आउटपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोसेस ग्रुप है, इनिशिएशन है। इनिशिएशन क्या होता है कि इसमें हम कोई भी प्रोजेक्ट को, नया प्रोजेक्ट है उसको डिफाइन करते हैं, या उसका कोई नया फेज है उसको डिफाइन करते हैं। इसमें हम स्टेक होल्डर्स कौन कौन से लोग हैं, कौन से लोग इसकी इसमें सहभागिता है, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं मोटा मोटा, एंड देन आप ऑथराइजेशन ऑब्टेन करते हैं कि हाँ, हम इस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। सो फर्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट इनिशिएटिंग एंड दैट इज अबाउट ऑथराइजिंग द वर्क। सो द प्रोजेक्ट चार्टर एंड स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है, इसके बाद से वो इसका की आउटपुट होता है। यानी हमारे हाथ में एक प्रोजेक्ट चार्टर होगा और एक कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी एक लिस्ट होगी, या उनको रजिस्टर एक मेंटेन करके रखते हैं। तो ये फर्स्ट जो प्रोसेस ग्रुप है इनिशिएटिंग, उसका आउटकम होता है। फिर सेकंड प्रोसेस ग्रुप में जाते हैं प्लानिंग। इसमें एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप करना होता है, जिससे कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अटेन हो सके। तो प्लानिंग में हमने बताया जो अपने नॉलेज मैनेजमेंट एरियाज हैं उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनते हैं और इन सब का इंटीग्रेशन भी किया जाता है। तो दिस इज द प्लानिंग स्टेज, जो कि मैंने इसके पहले भी एम्फेसाइज किया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। जितना एग्जॉस्टिवली प्लान करेंगे उतना ही जो है और बेहतरीन उसके रिजल्ट्स होंगे। फिर उसके बाद से एग्जीक्यूशन आ गया। इसमें जो है वर्क को कंप्लीट करना होता है, वर्क को पूरा करना होता है, जिससे कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव जो है वो सेटिस्फाई हो सके। इसमें जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एग्जीक्यूशन करने पर जो वर्क कर रहे हैं, जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसका डिलीवरेबल जो भी चीज है वो मिल जाती है। फिर वर्क का जो परफॉर्मेंस का डाटा कैसा रहा, वर्क करने में कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो चीज मिल जाता है। टीम का परफॉर्मेंस मिल जाता है। प्रोजेक्ट में जो कम्युनिकेशन थ्रू आउट द पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जो आपस में कम्युनिकेशन हुए हैं, उनकी स्टेटस रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो सप्लायर्स, उनके एग्रीमेंट्स, इन सबको चीजों को मिलता है। तो ये सारी चीजें, इशू कौन कौन से ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज आए, उनका लॉगिंग यानी उनका रजिस्टर मिल जाता है। तो ये एग्जीक्यूशन के बाद के ये सब आउटपुट रहते हैं। फिर जब एग्जीक्यूशन हो ही रहा है तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी चलता रहता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का मतलब ये है कि हमको ट्रैक करना कि जो हमने टाइम या जो कॉस्ट सोचा हुआ है, जो क्वालिटी सोची हुई है या प्लान की हुई है, उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं उसका हो रहा है, उसको ट्रैक करना और रिव्यू करना कि प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो है, परफॉर्मेंस उसके हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वेरिएंस हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, जो होना चाहिए और जो हो रहा है दोनों में अंतर है, तो इसको मैनेज करना और अगर जरूरत पड़े तो चेंज करना। तो मॉनिटरिंग कंट्रोल की एक्सरसाइज करने के बाद से हमको चेंज जो भी करना था उसका प्लानिंग में, फिर एग्जीक्यूशन में क्या क्या फर्क पड़ेगा उसका लॉग मिल जाता है। जो चेंज रिक्वेस्ट है उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाती है, वर्क परफॉर्मेंस इनिशिएटिव मिल जाता है। और जब हम मॉनिटरिंग कंट्रोल करते हैं तो शेड्यूल फोरकास्ट, कॉस्ट फोरकास्ट मिलता रहता है कि ये कितने समय में कंप्लीट होने वाला है प्रोजेक्ट, कितने कॉस्ट में कंप्लीट होने वाला है। एक तो प्लानिंग हो गई और एक एक्चुअल में क्या प्रोजेक्शन होता है कि जब हमने जो कर लिया तो पिछले जो काम किया है उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, उसके बेसिस पे जो है हम प्रोजेक्ट करते हैं कि इसका फोरकास्ट क्या रहेगा, कि जितना हमने प्लान किया था उतने में या उससे कितना डिफरेंट शेड्यूल लगने वाला है या कॉस्ट लगने वाली है। क्वालिटी कंट्रोल से भी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें मिलते हैं। एंड देन जो डिलीवरेबल्स है, जो भी आपको काम करना है इस प्रोजेक्ट में, उसका वेरीफाइड डिलीवरेबल्स मिल जाते हैं एंड दोज डिलीवरेबल्स आर एक्सेप्टेड। फिर इन सब के बाद फिर फाइनली क्लोजिंग होती है, वेयर वी फाइनलाइज ऑल द एक्टिविटीज एंड फॉर्मली क्लोज द प्रोजेक्ट और फेज। सो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होता है और प्रोक्योरमेंट जितने भी हैं आपके टेंडर्स वगैरह हैं वो क्लोज कर दिए जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्लोजिंग। हमारे यहाँ पे अभी इंडिया में जैसे मैंने दिखाया था कि 88% रनिंग है, यानी कि बहुत सारे काम कंप्लीट भी हो गए होंगे लेकिन उनमें क्लोजिंग नहीं हुई है। क्लोजिंग ना होने की वजह से भी, जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट कोई टेंडर है उसमें फाइनली क्लोज करके उसकी सारी मनी रिलीज नहीं की गई हैं, या फिर जो है इसको कमीशन नहीं किया गया है, तो बहुत सारा जो है ह्यूज फंड जो है वो
इसमें लॉग्ड है। ह्यूज फंड जो है इसमें लॉक्ड है। तो दीज आर द 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप विच नीड्स टू बी looked into. Then there are knowledge areas. A project management manager is responsible for applying and managing the following 10 knowledge areas, जो हमने आप लोगों से डिस्कस किया। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 2 कि स्कोप। इसमें स्कोप का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है में जितने भी वर्क हैं जो रिक्वायर्ड हैं उसको पूरा करने के लिए वो चीज इंक्लूडेड हो गई है कि नहीं, क्या काम करना है, वो स्कोप होता है। जिसको वो जब हो जाएंगे तब ये चीज कहलाई कि ये काम कंप्लीट हो गया है। टाइम का मतलब है कि मैनेज द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है विच हैज टू बी प्लान्ड इन द नॉलेज एरिया। देन कॉस्ट में मैनेज द प्लानिंग, जो प्लान करना है कैसे प्लान करेंगे, एस्टिमेशन करना, उनकी बजटिंग करना, बजट कैसे कैसे पैसा आएगा, फाइनेंस करना यानी एक्चुअल पैसा देना, फंडिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट टू इनेबल द कॉस्ट प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड विद इन द अप्रूव्ड बजट। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है जिसमें कि हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लाई करना होता है। क्वालिटी में कि हमको क्वालिटी पॉलिसी पहले डिसाइड करनी होती है कि किस प्रकार की क्वालिटी देनी है इस प्रोजेक्ट में, क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस प्रकार के एंड यूजर को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को इसको कंप्लाई करना चाहिए। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द प्रोजेक्ट विल सेटिस्फाई द नीड फॉर विच इट वॉज अंडरटेकन। देन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो आपके स्टाफ हैं, यानी जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम में हैं लोग, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना, उनको लीड करना, इंक्लूडिंग कि उनके सबके रोल्स आइडेंटिफाइड हों, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाइड हों, स्किल्स और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी हम लोग के स्तर पर, प्रोजेक्ट मैनेजर स्तर पर या उसके ऊपर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग कम्युनिकेशन ओनली। तो ensure timely and appropriate planning, collection, creation, then distribution, storage, retrieval, management, control, monitoring and control, and deposition of project information. तो प्रोजेक्ट से जो इंफॉर्मेशन है वो सारी कैसे ओवरऑल कलेक्ट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, स्टोर करनी है, ये चीज जो है कम्युनिकेशन प्लानिंग में आएगी। रिस्क में कि व्हाट आर द रिस्क, उनको आइडेंटिफाई करना, उनके लिए रिस्पॉन्सेस प्लान करना, देन रिस्क को कंट्रोल करना कि जिससे कि अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो उसका लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट बढ़ जाए, और निगेटिव है तो उसका लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाए। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि जो आप टेंडरिंग करते हैं या और दूसरे प्रोसेस से आउटसाइड एजेंसीज को कैसे इन्वॉल्व करते हैं अपने वर्क में, तो वो परचेज एंड और एक्वायर एंड कंट्रोल प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड रिजल्ट्स नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द प्रोजेक्ट टीम। तो ये प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में आता है। फिर स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं कि इसमें पीपल, ग्रुप, ऑर्गेनाइज। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि जो किसी प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं, ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन को एनालाइज करना और स्ट्रेटजीज डेवलप करना कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिसीजन में या एक्टिविटीज में किस प्रकार से उनको एंगेज किया जा सकता है। ये एक प्लानिंग पूरे उस प्रोजेक्ट की बहुत जरूरी होती है। तो हम लोग जनरली स्टेक होल्डर्स को ज्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको मार्जिनलाइज करके रखते हैं। एंड देन जब प्रॉब्लम होती है स्टेक होल्डर्स की, देन वी कम अप विद द रीजंस कि इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो गया है, यहाँ पे किसी ने धरना दे दिया है, कुछ और भी कुछ कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो स्टेक होल्डर्स को जो है वो की प्लानिंग भी जो है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। एंड देन इन सबको मिला करके इनका इंटीग्रेशन करना, जिससे आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना, जिससे कि विद इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप ये सारी चीजें जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाएं। तो ये जो है आपके नॉलेज एरियाज जो हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। और इन नॉलेज एरियाज को बेसिकली वी हैव टू कीप इन व्यू।
अब इसमें जैसे आपके ये डिफरेंट प्रोसेस ग्रुप हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग, और ये नॉलेज एरियाज हैं: स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज। तो शुरू में जब इनिशिएशन होना है यानी चार्टर बनना है, तो इन सब का तो ब्रॉड स्कोप रहेगा कि ब्रॉडली क्या क्या चीज रहेंगी, वो आप लिख लेते हैं, बहुत डिटेल में एड्रेस नहीं करते। लेकिन इंटीग्रेशन, इन सब का जो ब्रॉड आइडिया है वो इंटीग्रेशन में आ जाता है। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कौन इससे अफेक्ट होगा, कौन इसको अफेक्ट कर सकता है, वो शुरू के चार्टर में का पार्ट होते हैं, इनिशिएशन का पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग, तो इन सब की एग्जॉस्टिव सभी चीजों की करते हैं। देन उसके बाद से एग्जीक्यूशन, दैट इज जो आपका एग्जीक्यूशन में चूंकि टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप तो ट्रिपल कंस्ट्रेंट है, ये तो फिक्स हो गया, और रिस्क जो है वो आपने आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन बाकी सब का जो है एग्जीक्यूशन करना होता है कि क्वालिटी आपको इन्फोर्स करनी है और सबसे काम लेना है, ये सारी चीजें जो एग्जीक्यूशन फेज में इम्प्लीमेंट होती हैं। और उसके बाद से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन सभी का होता है एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ह्यूमन रिसोर्सेज ही कर रहे हैं, तो इन सबको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ये सारे नॉलेज एरियाज जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। सिर्फ ह्यूमन को नहीं बल्कि ह्यूमन का परफॉर्मेंस की टाइम को सच, टाइम कॉस्ट, टाइमलीनेस है कि नहीं, कॉस्ट के अनुरूप चल रहा है कि नहीं काम, क्वालिटी के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में देखी जाती हैं। देन क्लोजिंग में कि इंटीग्रेशन, सभी चीजें जो हैं वो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स आर मेट और नॉट, एंड देन प्रोक्योरमेंट यानी टेंडरिंग जो भी है, आउटसाइड एजेंसीज के जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो प्रॉपरली क्लोज कर लिया जाए। प्रोजेक्ट इनिशिएशन जब हम लोग करते हैं तो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर ही किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑथराइज करता है कि किस प्रकार से ये काम किया जाना है। प्रोजेक्ट चार्टर का जो बेसिक पार्ट है, एक तो ये कि इसका बिजनेस नीड क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, जो भी काम करने वाले हैं उसका जस्टिफिकेशन बताइए, उसका हाई लेवल स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, मतलब जैसे कि किस सर्विस को हम अचीव करने वाले हैं या क्या रिजल्ट मिलने वाला है इससे, किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है हमारी हाई लेवल की, किस प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, एजम्पशंस, स्टेक होल्डर, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट चार्टर में, कॉस्ट, एंटिसिपेटेड कॉस्ट और टाइम जो है ये प्रोजेक्ट चार्टर में आइडेंटिफाई होता है। और किसी को प्रॉपरली जैसे सीनियर मैनेजर को उसको अथराइज करना होता है कि ये सारी चीजें इसमें आ जाएं। प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर हमने प्रॉपरली की तो वी विल बी हैप्पियर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और अगर नहीं की इट विल लीड टू द, अगर शुरू में प्रोजेक्ट स्टार्ट में रिलैक्स रहे और अपना रिलैक्स्ड मोड में काम रहा तो प्रोजेक्ट एंड में देन इट विल लीड टू द फ्रस्ट्रेशन। अब इसमें जो आपका स्कोप आया, स्कोप मैनेजमेंट जैसे हम पहले देखें तो स्कोप मैनेजमेंट में जो भी काम आपको करना है उसको छोटे छोटे वर्क्स के में ब्रेक डाउन करना होता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, WBS। जैसे हम लोगों ने बोला कि कोई भी आप सभी लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई ना कोई किया होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है तो उसको छोटे छोटे वर्क ब्रेकडाउन में क्या करेंगे, एक स्पीकर्स का एक तो वर्क हो जाएगा, एक वेन्यू हो जाएगा, एक मार्केटिंग हो जाएगी, एंड देन रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। अब स्पीकर में डिसाइड टॉपिक्स, डिसाइड स्पीकर्स, अरेंज स्पीकर, ब्रीफ, ये वाला वर्क जो है कोई देख सकता है। वेन्यू में डिसाइड वेन्यू, बुक वेन्यू, अरेंज केटरिंग, ये सारी चीजें हैं। मार्केटिंग में डिसाइड फ्लायर्स, प्रिंट फ्लायर्स, मेल फ्लायर्स, फिर रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज द डिकम्पोजिशन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड एंड देन द आउटपुट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट स्कोप बेसलाइन। तो ये जो है बेसिकली कोई भी जब हम काम करने चलें तो सबसे पहले उसको अलग अलग सिंपल वर्क्स में तोड़ लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर उन वर्क्स को भी फर्दर सब वर्क्स में, सब माइलस्टोन्स में उनको ब्रेक कर लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। फिर जैसे टाइम
टाइम मैनेजमेंट जब हम लोग करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में कैसे एस्टिमेट करना है कि टाइम कितना लगने वाला है। तो इसमें बहुत सारे ये पीएमआई के टर्म्स हैं, जैसे कि 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, कि हमारा पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, मोस्ट लाइकली टाइम क्या रहेगा। एनालॉगस एस्टिमेशन का मतलब होता है कि टॉप एंड, ऊपर से जो है, जैसे सिमिलर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है, सिमिलर प्रोजेक्ट कोई है तो उसके हिसाब से वो बता देगा कि इसमें इतना समय लगेगा, इसको कहते हैं एनालॉगस एस्टिमेशन। दूसरा होता है बॉटम अप एस्टिमेशन, इसका मतलब कि लोएस्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे आपने छोटे छोटे वर्क में जो डिस्ट्रीब्यूट में उसको बांट रखा है, उनको जोड़ जोड़ करके और तब फिर हम ऊपर टोटल प्रोजेक्ट में एस्टिमेट करते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। तो एनालॉगस टाइम में ऊपर से टॉप डाउन एस्टिमेशन होता है, और बॉटम अप एस्टिमेशन में नीचे से छोटे छोटे उनको ब्रेक डाउन करके देन उनमें जितना टोटल समय लग रहा है, कुछ पैरेलल में होंगे, कुछ एक के साथ में होंगे, एक के बाद एक होंगे, तो उनके हिसाब से टोटल बॉटम अप एस्टिमेशन करते हैं। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन ये होता है कि जैसे कोई नेबरहुड में पर स्क्वायर फीट रेट है तो सिमिलर टाइप के कंपेरेबल पैरामीटर्स से एस्टिमेशन कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार से और ये तमाम सारे इसमें टाइम शेड्यूल मैनेजमेंट के टर्म्स हैं, और इनमें जो एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में होगी, कौन सी एक्टिविटी पैरेलल में हो सकती है, कौन सी एक्टिविटी को क्रश करना है, क्रैश करना है, कितना जो है टोटल स्लैक, यानी कि किस एक्टिविटी को करने से प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो वो उसको फ्री स्लैक कहते हैं। तो इस प्रकार से लीड का मतलब होता है कि सक्सेसर एक्टिविटी कैन बिगिन आफ्टर द प्रेडिसेसर एक्टिविटी इज कंप्लीट, यानी कि पहले वाली जो एक्टिविटी जब कंप्लीट होगी तभी बाद वाली एक्टिविटी शुरू हो सकती है, तो दैट इज द लीड एक्टिविटी कहलाती है। तो इस प्रकार से ये फास्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है। शेड्यूल कंप्रेशन का मतलब होता है कि जब आप क्रैश कर दें शेड्यूल को, जैसे मान लीजिए कि आपने काम चल रहा है कोई चीज, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम में कितना इसमें स्कोप पूरा हो गया है वो आप निकालते हैं, कॉस्ट पूरा हो गया है। फिर जब लगता है कि जितना हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड था उसमें कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो हम अपनी जो एक्टिविटीज हैं, कुछ एक्टिविटीज को क्रैश करते हैं कि उसमें ज्यादा अगर हम इनपुट्स लगा दें, ज्यादा रिसोर्सेज लगा दें, ज्यादा मशीनें लगा दें, ज्यादा लोग को लगा दें, तो उनसे करने से वो जो अगर वो एक्टिविटी में जो समय लग रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट को कंप्लीशन का डेट है वो वायलेट ना हो, वो खराब ना हो। इसी तरह से फास्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है कि कुछ एक्टिविटीज को हम ओवरलैपिंग मतलब सीक्वेंस में करने के बजाय ओवरलैप में कर लें, तो इससे फास्ट ट्रैक हो सकता है। और इसी तरह से रिसोर्स लेवलिंग की, जहाँ पे आपको रिसोर्सेज लगा रखे हैं, वो अगर क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, क्रिटिकल एक्टिविटी कहीं और हो रही है जहाँ पे कि रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे रिसोर्सेज को शिफ्ट कर देना, ये रिसोर्स लेवलिंग में आता है। तो इस प्रकार से ये एक एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर तमाम सारी एक्टिविटीज अपने को करनी होती हैं, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो अपने ट्रैक पे रह सके। तो जब हम 3 पॉइंट एस्टिमेशन करते हैं तो इसमें बेसिकली जो है आप ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट निकालते हैं, पेसिमिस्टिक एस्टिमेट निकालते हैं, और एवरेज एस्टिमेट जो होता है इसको 4 गुना वेटेज देते हैं, और बाकी को एक सिंगल वेटेज देते हैं, और इन तक सबको 6 से डिवाइड कर दें तो हमें एक्सपेक्टेड टाइम निकल के आता है कि इतना समय लगेगा। जैसे इसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, कोई भी काम को करने में कम से कम कितना समय लगा, उसको बोलते हैं लगने वाला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। जैसे आप किसी भी मीटिंग में अगर होंगे तो ज्यादातर आपके जो हेड होंगे वो कहेंगे कि कम से कम कितने समय में कर सकते हैं, और जो बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये कहते हैं कि व्हाट इज द पेसिमिस्टिक टाइम, मतलब इतना समय तो लगेगा ही। तो इन सब के बीच में जो है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस जिसकी सबसे ज्यादा है, वो मोस्ट लाइकली टाइम हुआ। अब इसको हम 4 टाइम वेटेज दे दें और इसको सिंगल वेटेज दें, इसको सिंगल वेटेज दें, तो ये आप वेटेड एवरेज आएगा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट वेटेड एवरेज। या इस ये जो है हम लोग इसमें एस्टिमेशन में अपने टाइम इस्तेमाल करते हैं इसको।
तो क्रिटिकल पाथ एक होता है। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है कि बिगिनिंग से एंड तक जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको डिले नहीं किया जा सकता, अगर डिले होगी तो उससे फिर प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिलेड हो जाएगा। ऐसे जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। तो देयर कैन बी मोर देन वन क्रिटिकल पाथ, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जैसे आप सभी लोग, तो उनको इसी क्रिटिकल पाथ पे ही फोकस करना होता है। थोड़ा सा, चूंकि ये बहुत बेसिक चीज है तो मैं इसको थोड़ा सा समझाना भी चाहूंगा कि क्रिटिकल पाथ मेथड में जो अर्ली स्टार्ट टाइम ES कहलाता है। जैसे कोई भी काम को करना है तो कब अर्लीस्ट हम शुरू कर सकते हैं, और फिर उसमें काम को करने में ड्यूरेशन मान लीजिए सब में सेम लगने वाला है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जब हमने किया तो जितना ड्यूरेशन लगने वाला है तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा। इससे फिर आगे जो है वो आगे की अगली एक्टिविटी, जैसे अर्लीस्ट फिनिश होगा अगली एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं, उससे अगली को प्लान कर सकते हैं, उससे अगली को, और फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर आएगा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन जब हो जाता है, मतलब जो प्लानिंग हो गई उसमें अर्लीस्ट फिनिश टाइम आएगा। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है अगर हमारे टारगेट डेट पर ही है तो वो हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम भी हो जाएगा। तो इसमें हम जब वापस जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है, यानी कि सबसे देर में कब तक ये बर्दाश्त किया जा सकता था कि ये एक्टिविटी पूरी हो जाए, उसमें से ड्यूरेशन घटाएंगे तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। तो ये एक फॉरवर्ड पास होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और ये बैकवर्ड पास होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो इसमें जो जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा केस लेते हैं, दो एक्टिविटीज हैं A और B जिनमें 5 दिन और 10 दिन लगता है, और C एक्टिविटी में 7 दिन लगता है मान लीजिए। ठीक है, 0 डे पे स्टार्ट हुआ, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो A जो एक्टिविटी है इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा? बड़ी में स्पीक, हेलो, 5 days. नहीं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ A एक्टिविटी विल बी 0. 0। वेरी गुड। और 5 दिन जो कि लग रहे हैं इसमें कंप्लीशन में, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम विल बी 5 days. 5 डेज। सिमिलरली B एक्टिविटी में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 0 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज 10 डेज, क्योंकि 10 दिन लगते हैं इसको पूरा करने में। C एक्टिविटी जो इन दोनों के खत्म होने के बाद ही शुरू हो सकती है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर C एक्टिविटी विल बी 10 दिन। 10 डेज। ठीक है, और 7 दिन इस एक्टिविटी में भी लगते हैं, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ C एक्टिविटी विल बी 17। नाउ सपोज कि 17 डे में हमको प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम विल बी 17, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर C एक्टिविटी विल बी 10। ठीक है, अब 10 जो है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ C है, तो यानी कि लेटेस्ट जो B एक्टिविटी है वो भी 10 डेज में खत्म हो जाए और A एक्टिविटी भी 10 डेज में खत्म हो जाए, तभी तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 10 डेज इसका होगा। ठीक है, नाउ सपोज B एक्टिविटी लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 10 डेज, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर B विल बी, लेट स्टार्ट टाइम फॉर B विल बी 0 सर। 0। वेरी गुड। और A एक्टिविटी चूंकि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 10, एक्टिविटी में 5 दिन लगते हैं, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर A एक्टिविटी विल बी 5। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब यह हुआ कि A एक्टिविटी जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है, लेकिन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 5। B एक्टिविटी का 0 है और B एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 0। तो कौन सी एक्टिविटी जो है क्रिटिकल पाथ हो गया, जिसमें कोई भी दिन का मार्जिन नहीं है इसको डिले होने का? कौन सा हो गया पहले? कौन सा पाथ हो गया जो क्रिटिकल कहलाएगा? एनीबॉडी? बी पाथ। बी के थ्रू सी जाएंगे तो ये क्रिटिकल हो गया इसमें, क्योंकि इसमें जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है लेट स्टार्ट टाइम है दोनों 0 है। इससे अगर एक दिन भी डिले किया तो हमारा प्रोजेक्ट 17 से 18 दिन हो जाएगा फिर वो। लेकिन ए एक्टिविटी को अगर हम शुरू करने में 5 डे तक भी डिले कर दें तो हमारी C एक्टिविटी डिले नहीं हो रही है,
तो ये क्रिटिकल पाथ नहीं है। 5 दिन के बाद ये भी क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल में समझाया गया है। बाकी इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल पाथ होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना होता है कि उनको क्रिटिकल पाथ पे ध्यान रखना होता है कि हमारा जो है कहीं पे भी ऐसा ना कोई डिले हो जिससे कि ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद से हम आते हैं वैल्यू मैनेजमेंट पे। तो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से होता है कि जब हम किसी भी चीज का एक ग्राफ खींचें कि पॉइंट समय के साथ और कितना कॉस्ट, उस पर कितना खर्चा आ रहा है उसके साथ, तो एक जो प्लान्ड वैल्यू है वो पीवी कहलाती है कि जो भी खर्चा है वो इस तरह से हमने प्लान कर रखा है कि इस तरह से खर्च होगा। तो बजट एट कंप्लीशन जो है वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। नाउ अभी मान लीजिए आज के दिन में हम किसी प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, तो ब्लैक से जो है वो प्लान्ड वैल्यू हो गई। अब एक्चुअल कॉस्ट कितना खर्च हो गया वो मुनीम जी बताएंगे या जो फाइनेंस ऑफिसर है वो बताएंगे कि टोटल कितना खर्चा हो गया। तो टोटल जो खर्चा हो गया वो एक्चुअल कॉस्ट एट पॉइंट इन टाइम मान लीजिए ज्यादा है, ठीक है। और ग्रीन में जो है वो है अर्नड वैल्यू। अर्नड वैल्यू का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको उससे कितना फायदा मिला उस प्रोजेक्ट से। जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि इस तरह से समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक कमरा है, इसमें 4 दीवारें हैं, ठीक है। हर एक दीवार की कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपये कॉस्ट है एक दीवार की बनाने की, और 4 दीवार बनानी है, उसको 4 वीक में बनानी है। 2 वीक के बाद हमने देखा कि एक दीवार तो पूरी बन गई, दूसरी दीवार आधी बनी है। और इसमें जब खर्चा देखा गया फाइनेंस उसका कि कितना खर्चा हुआ है, तो पता चला कि अकाउंट से तो पता चला कि 1,10,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो यानी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई इस केस में, कोई बताए? हेलो, कोई बताइए एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? 1,10,000 रुपये एक्चुअल में खर्च हो चुका है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है मनोज, सर, आ रही है सर। हाँ तो बताएं एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, कोई बताइए। एक बार आप सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए, लगता है तब लोग बताएंगे सर। ओके, मान लीजिए कि एक कमरा बना रहे हैं, कमरे में सिर्फ 4 दीवारें बनानी है और कुछ नहीं करना है। 4 दीवारें बनानी है, पहले हर एक दीवार बराबर है, चारों दीवार बराबर है एक दूसरे से। तो 50-50 हजार रुपए में एक एक दीवार बनती है और 1 वीक लगता है प्लांट में। एक आदमी बोलिए, एक आदमी। हेलो मनोज जी, आप इनके बिहाफ पे बोल सकते हैं। अब कोई बोल रहे, हाँ बोलिए। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है जब हमने देखा फाइनेंस में, तो 1,10,000 रुपये 2 हफ्ते के बाद हमने रिव्यू किया, तो 1.5 यानी 1.5 वॉल ही बनी थी, एक पूरी बनी थी, एक आधी बनी थी। तो जबकि 2 हफ्ते में हमको 2 दीवार बन जानी थी और 50,000 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए खर्च होना था। तो प्लांट वैल्यू क्या थी? 1,00,000 रुपए और 2 वीक के बाद, और एक्चुअल जो खर्च हुआ वो 1,10,000 हुआ। और अर्नड वैल्यू यानी कि हमारी 1.5 दीवार ही बनी, तो जो फायदा मिला हमको उसके बराबर का वो मिला 75,000 का, 75,000 यानी एक वॉल पूरी और एक वॉल आधी, 75,000 रुपए। तो अर्नड वैल्यू कितनी हो गई? 75,000 75,000। प्लांट वैल्यू हो गई 1,00,000 और और एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट हो गई 1,10,000, 10,000। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कॉस्ट परफॉर्मेंस अभी कैसी चल रही है। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस जो है अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। अर्नड वैल्यू 75,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट 1,10,000, तो यानी कि कॉस्ट परफॉर्मेंस जो है हमारी वो 68% 70% के आसपास चल रही है, 0.67 के आसपास है, जो कि कायदे से 1 होनी चाहिए थी। यानी कि हम ठीक कॉस्ट, जो भी मटेरियल लगा रहे हैं, रिसोर्सेज लगा रहे हैं, उनमें कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आ रही है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारी कॉस्ट जो है वो 1 पॉइंट यानी करीब 33% 40% ऊपर जाएगी।
तो इसलिए जो है ये अगर हम अभी से रिव्यू करें कि कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रही है, हम किस प्रकार से मेजर्स लें कि कॉस्ट जो है अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में आ जाए, तो हम इसका ये अपना काम है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर का कि वो देखना कि कॉस्ट के हिसाब से जो रिव्यू कर रहे हैं तो हमारा काम जो है वो प्रॉपरली चलता रहे। दूसरा है शेड्यूल परफॉर्मेंस, यानी अर्नड वैल्यू आपने की 75,000 रुपए की और प्लान्ड वैल्यू हुई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए थी, यानी शेड्यूल के हिसाब से हम 0.75 पर हैं, 75% पे ही हैं। कायदे से कितना होना चाहिए था? 1। तो हम शेड्यूल, तो इसका मतलब कि अगर इसी हिसाब से अगर काम चलता रहा तो हमारा जो शेड्यूल है वो 33% एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसमें काम को करने में। यानी अगर हमने 4 हफ्ते में कहा है तो 4 हफ्ते का मतलब कि 33% एक्स्ट्रा जो है वो समय लगने वाला है। तो ये हमने प्रोजेक्ट मैनेजर को एक डाटा मिल गया। अब डाटा मिलने के बाद से अब वो उसको कैसे यूज कर सकता है वो देखना है कि हमारा समय भी ज्यादा लगने वाला है, कॉस्ट भी ज्यादा लगने वाली है। अगर हम कमिटेड हैं कि विद इन टाइम और विद इन कॉस्ट ही करना है तो हम क्या क्या एक्टिविटी ऐसी करें, क्या क्या मेजर्स ऐसे लें, किस प्रकार से इसको पूरा ऑर्गेनाइज करें, एक्स्ट्रा आवर्स में काम करें या कम वैल्यू वाले मटेरियल को यूज करें या अच्छे मिस्त्री लगाएं, या मतलब दैट वो पूरा निर्णय अपने को लेना होता है। और तब जो है जिससे कि हम जब कंप्लीशन होगा तो उसको हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट गुड कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई वेरिएशन हो रहा है, कोई चीज नहीं कंट्रोल में है, देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना और प्लानिंग जो पार्ट है, जो 10 नॉलेज एरियाज है उनको फिर से पूरा करना पड़ेगा, तब हम, ताकि हम उसमें वेरिएशन जो है वो कर सकें। अदर नहीं हम चाहते हैं तो हमको अपने मेजर स्तर पे ही वो सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे टाइम कॉस्ट ओवररन ना हो। अब हम क्वालिटी मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ढाबे पे खाना खाने का कभी तड़का दाल करने का दिल है, और तो अब अगर उसके दिल ऐसा है और आपको ले जाया गया और 5 स्टार या 7 स्टार होटल में कॉन्टिनेंटल फूड खिला दिया, तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपको जो क्वालिटी चाहिए वही क्वालिटी जो है वो देनी चाहिए प्रोजेक्ट में भी। तो अब इसमें जो है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में थोड़ा सा अंतर होता है। कि एक्यूरेसी होती है वो होती है कि कंफर्मिटी ऑफ अ मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी टू इट्स एक्चुअल वैल्यू, कि कितना जो है वो कंफर्म कर रही है, जितना एक्चुअल वैल्यू चाहिए उसके कितने नजदीक में है, वो होता है एक्यूरेट। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि जितना भी हम मेजरमेंट्स दिखा रहे हैं वो एक ही तरह के रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। वो हो सकता है कि एक ही तरह के रिजल्ट जो हैं जो एक्चुअल जो हमको चाहिए उससे थोड़ा दूर हो। तो हमारा बेसिकली एक्यूरेट और प्रिसीजन दोनों ही क्वालिटी में जो रिजल्ट्स होते हैं वो होने चाहिए। तो अब क्वालिटी मैनेजमेंट की जो फिलोसफीज और प्रिंसिपल्स हैं काफी सारे ओवर द पीरियड इवॉल्व हुए हैं। मैं जस्ट उनको ब्रीफली बता देता हूं कि जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है वो डेमिंग्स ने प्रपोज किया था, जिसमें ये था कि प्रोएक्टिव अप्रोच विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो करना चाहिए। जीरो डिफेक्ट होता है क्रॉसबी का कि डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, यानी कि कोई भी काम को जब आप करें पहली बार करें तो एकदम ठीक से बढ़िया से करें। तो इसका मतलब उसके बाद जब भी होगा वो काम तो ठीक से होगा। अगर पहली बार में ही आपने रिलैक्स कर दिया तो वो काम फिर आगे भी और ज्यादा खराब होता जाएगा, खराब क्वालिटी मिलेगी। फिटनेस फॉर यूज का मतलब होता है कि जो कस्टमर को जो चीज चाहिए वो चीज सेटिस्फाई करना, यानी जिस काम के लिए कोई प्रोडक्ट है या कोई प्रोजेक्ट है वो फिट होना चाहिए। तो जुरान ने इसको प्रपोज किया था। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट काइजेन का एक प्रिंसिपल है कि हम लगातार इंप्रूव करते जाएं, धीरे 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 धीरे, प्रोएक्टिव अप्रोच टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट, काइजेन ने ये किया था। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम, इफ सपोज वी आर एडिंग 1% एवरी डे, सो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना परसेंट बढ़ जाएगा? वो प्रीवियस डे के ऊपर 1% अगर हम इंप्रूव करें अपने आप को या जमा करें तो एट द एंड ऑफ ईयर 365 दिन के बाद कितना परसेंट इंप्रूवमेंट हो जाएगा? कोई बताएगा? क्यों, कोई बोलेगा? हेलो? नहीं, हाँ कुछ तो बोल दीजिए।
हेलो। से कैलकुलेट कर रहे होंगे लोग। तो ये जो है 3700% जो है वो हो जाता है। इसको कहते हैं पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ पावर 1 to the power। तो ये 37 टाइम्स हो जाता है। यानी कि अगर बेटर मैनेजमेंट, बेटर एक्सपोनेंशियल हो जाता है। पर्सन, बेटर वो अगर बने, हर पिछले दिन से 1% भी बेटर बने, तो बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर इंसान बन सकते हैं, बहुत ही बेटर मैनेजर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का काइजन का प्रिंसिपल था। गोल्ड प्लेटिंग हमने बता दिया कि इट इज अनएक्सेप्टेबल इफ वी गिव मोर देन व्हाट इज रिक्वेस्टेड। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो अगर हम मान लीजिए कोई काम को कर रहे हैं, उसको काम जो स्पेसिफिकेशन है, अगर हमने मान लीजिए टेंडर कंडीशन कोई बनाया हुआ है, उसमें कॉस्ट ऑफ कंफर्मिंग है, यानी कि अगर वो काम को करता है तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, उसको करने में जितना खर्चा आएगा, और अगर नहीं करता है वो चीज तो उसको कितना पेनल्टी लगेगी। तो अगर कॉस्ट को करने की जो कॉस्ट है, वो उसको ना करने पे जो पेनाल्टी लगने वाली है उससे कम है, तो वो तो काम को करेगा। अगर काम को करने की कॉस्ट ज्यादा है और उसको जो पेनाल्टी लगने वाली है वो कम है, तो इंटेलिजेंट बंदा क्या करेगा कि काम को नहीं करेगा, कि लगा लो पेनाल्टी। तो ये चीज भी देखनी होती है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या आने वाली है। उसी तरह से डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है। 6 सिग्मा होता है, जैसे कि 1 मिलियन में एक फेल्योर के लिए डिजाइन करना। जैसे अपना जो डब्बा वाला है बॉम्बे में, दे आर 6 सिग्मा कंप्लाइंट। और ISO 9000 है कि डॉक्यूमेंट व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस प्रकार से जो है वो ये क्वालिटी मैनेजमेंट की फिलॉसफीज हैं जो कि लोगों को दैट वी कैन इम्प्लीमेंट एट वेरियस लेवल। तो अब हम लोग एक बार फिर से आते हैं इस पे ट्रिपल कंस्ट्रेंट पे, कि जो टाइम, कॉस्ट, स्कोप, ये 3 जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और क्वालिटी इनके बीच में। तो अगर हमने इनको ध्यान में रखा तो जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा विद इन कंट्रोल रहता है। स्कोप अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उससे टाइम और कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। टाइम चेंज हो रहा है तो उससे स्कोप और कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल होता है वो होता है कि ये बैलेंस है, इसको साइंटिफिकली बैलेंस करके रखना। अब इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी थोड़ा सा देख लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स जो होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ जितने भी लोग हैं इस पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट को करने में, तो उन सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दी जाती है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स में इनका हर एक का एक अलग अलग रोल होता है। जैसे कुछ पर्सन होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दोज वो डू द वर्क, जो लोग काम करते हैं, एक्चुअल में काम करेंगे, उनको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल। कुछ लोग होते हैं ए यानी अकाउंटेबल, जो कि अल्टीमेटली तो आंसरेबल होते हैं जो काम करने के लिए, लेकिन वो अपने रिस्पॉन्सिबल लोगों को डेलीगेट कर देते हैं। और लेकिन जो काम करके लाते हैं रिस्पॉन्सिबल लोग, उसको वो अप्रूव करते हैं। तो ऐसे लोग को क्या कहते हैं? अकाउंटेबल। तो रिस्पॉन्सिबल जो काम एक्चुअल को करते हैं, और ए उनके ऊपर हो गए जो अकाउंटेबल हो गए। सी कंसल्टेड होते हैं कि जिनकी ओपिनियन ली जाती है या उनसे पास कराया जाता है, हाँ ये ठीक है कि नहीं है। और आई ऐसे होते हैं जिनको डे टू डे के बारे में अप टू डेट प्रोग्रेस उनको दी जाती है, आई। तो रा सी होता है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म्ड। तो ये अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए उनके अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। जैसे कोई पर्सन है तो वो शेड्यूल डेवलप के लिए कि उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ही मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन थिंग्स, दिस पर्सन मे बी अकाउंटेबल फॉर सर्टेन एक्टिविटीज लाइक कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट एंड डेवलप टेस्ट प्लान। तो ये जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। इसमें एक्टिविटी और पर्सन और उनको ये चारों चीजें, राशि यानी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म्ड, ये एक मैट्रिक्स बना ली जाती है। इसके हिसाब से लोगों को अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना होता है।
अब इसमें लीडरशिप स्टाइल जो है, जब भी कोई टीम बनती है प्रोजेक्ट मैनेजर की, मैनेजमेंट की, तो इसमें अलग अलग फेजेस आते हैं। सबसे पहला फेज आता है फॉर्मिंग, जब टीम बन रही होती है। फिर उसके बाद स्टॉर्मिंग होता है कि टीम में इनिशियली एक क्योस होता है, जब पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, तो एक क्योस स्टॉर्म टाइप का आता है। फिर उसके बाद से नॉर्मिंग होता है कि टीम बिहेवियर जो है नॉर्मलाइज होना होता है, और जब नॉर्मलाइज होने के बाद से देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग, और आफ्टर परफॉर्मिंग दे आर एडजॉर्न्ड। तो इसमें लीडरशिप स्टाइल जो अलग अलग है, जैसे डायरेक्टिंग, कोचिंग, फैसिलिटेटिंग, सपोर्टिंग। ये फॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग स्टाइल में डायरेक्टिंग का मतलब कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना होता है आपको कि ये काम ये लोग ऐसे ऐसे करेंगे, और उसको सुपरवाइज शुरू में करना होता है। फिर जब स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग फेज में आ जाता है, तब कोचिंग वाली लीडरशिप स्टाइल काम में आती है। फिर आप उनसे इनपुट लीजिए, रेशनल एग्जांपल्स और ऑफर करिए, जैसे कोच टाइप का करते हैं। नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग वाली स्टेज जब आएगी, तब फैसिलिटेट करते हैं, यस वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग द वर्क, मेंटेन द टीम प्रोग्रेस, एंड वी डेलीगेट द डे टू डे कंट्रोल। फिर जब लास्ट में एडजर्न होने वाला है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अपने टारगेट को अचीव हो गया, तब जो है सपोर्ट एंड मोटिवेट द टीम टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट, जब हम कोई भी टीम काम को करते हैं, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आना जो है वो बहुत एसेंशियल, मतलब जरूरी होता है। तो जनरली जो है प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इसमें सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, जैसे विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूलिंग प्रायोरिटीज हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्कार्स रिसोर्सेज हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल वर्क स्टाइल की वजह से हो सकते हैं, मेथोडोलॉजी, कॉस्ट, बजट, पर्सनालिटीज, इन सब की वजह से। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, वो प्रायोरिटीज की वजह से, स्कार्स रिसोर्सेज की वजह से ज्यादा होती है, बाकी की वजह से थोड़ा कम भी हो सकती है। तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जानी चाहिए, आप लोग को एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोलैबोरेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपस में लोग कोलैबोरेट करना, उनकी बात को समझना, उनको उनको जो है फैसिलिटेट करना, देन कॉम्प्रोमाइज और रिकनसाइल, देन फोर्स और डायरेक्ट। ये सब रिकमेंडेड रिजोल्यूशन टेक्निक्स हैं। और जो नॉट रिकमेंडेड हैं वो है स्मूथ, एकोमोडेटिंग, विड्रॉइंग, अवॉइडिंग। ये जो है मतलब जैसे कह देना कि भाई मैंने तो विड्रॉ कर लिया, व्हाट आपको जो करना है कर लो, तो ये जो है रिकमेंडेड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो टेक्निक्स हैं, वो कोलैबोरेशन, मतलब बेसिकली स्मूथ करना, अकोमोडेट करना। दिस इज नॉट, वी हैव टू कोलैबोरेट, वी हैव टू वर्क विद ईच अदर, रिकनसाइल कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना, विड्रॉ करना, ये सब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक जो है वो नहीं है, आई मीन इट्स नॉट एडवाइजेबल। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो है, दिस इज वन ऑफ द बेसिक, we have to be aware of the basics of effective communication across the broad stakeholder community. कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में जो है, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में कैसे होता है, इंटरैक्टिव होता है, कि दो लोग के बीच में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। पुश कम्युनिकेशन होता है कि जैसे आप लोग ने देखा होगा, शुरू में जो कंट्रोल की जो पोजीशंस आती हैं, वो दरवाजे के नीचे से ऊपर सुबह पुश कर देते थे 6 बजे, ताकि वो फिर इंफॉर्मेशन अगले के पास जब वो समय मिलता था उसको पढ़ता था। उसको पुश कम्युनिकेशन कहते हैं। एक होता है पुल कम्युनिकेशन। आजकल जितने भी इंटरनेट पे बेस्ड वो हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनमें पुल होता है कि आप उस पर जाएं, आप उसको खोलें, और अपने जिस डिवीजन, जिस जगह के लिए चाहिए, वहां से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पुल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल जो होता है, उसमें जैसे आप कोई भी सेंडर, कोई भी चीज़ है, आप कुछ कहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए कोई चीज़ बोल रहा हूँ, हिंदी में या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें फिर ये आपके पास तक पहुंच रही है। आपको जैसे इंग्लिश मान लीजिए बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, तो उनके लिए ये चीज़ क्या थी, नॉइज थी। इनके लिए एक सिर्फ एक ध्वनि है, नॉइज टाइप की हो गई। लेकिन अगर वो उसको डी कोड कर पा रहे हैं, तब वो उसको
समझ पा रहे हैं कि क्या कहना है। जैसे हिंदी में अगर बोल रहे हैं, बहुत से लोग को समझ में आ रहा है तो डिकोड करके उन्होंने समझ में आया। समझ में आने के बाद से बहुत से लोग जो है ओके या ओके या मुझे समझ में आ रहा है ऐसा अपना सिग्नल देते हैं, तब ये वापस तक आता है, तब ये पता चलता है कि ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। तो इसमें ये चीज समझना जरूरी है कि जो सेंडर ने जो कोड किया भेजा वो डिकोडर को प्रॉपरली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और वो ये चीज इन तक वापस आ जाए कि हाँ ये चीज इसको डिलीवर हो चुकी है। फिर इसके बाद से कम्युनिकेशन टाइप होता है कि एक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग, फीडबैक और नॉन वर्बल पैरालिंगुअल। ये सब जो है एक्टिव लिसनिंग, जब जब रिसीवर है वो वेरीफाई करता है करेक्ट इंटरप्रिटेशन को, और इफेक्टिव लिसनिंग में रिसीवर जो है वो विजुअल और वोकल क्यूज को ऑब्जर्व करता है। जब हम सेंडर फीडबैक देता है तो उस फीडबैक से पता चलता है कि वो चीज जो है वो प्रॉपरली रिसीव हो रही है कि नहीं। और हम लोग का 55% से ज्यादा कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी और फेशियल लैंग्वेज से ही पता चलता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत जरूरी वो है। जैसे इसमें हम लोग को ये भी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी समझना होगा कि एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट मीनिंग। जैसे मान लीजिए ये वाला सिग्नल है, इसमें अगर यूके एंड यूएसए में इसको कहते हैं ओके, जापान में इसको बोलते हैं मनी, और रशिया में इसका मतलब होता है जीरो, और ब्राजील में इसको बोलते हैं इंसल्ट। तो इसलिए हमको किस प्रकार का कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हेलो जो है हाथ मिलाकर करते हैं, और कुछ लोग सर झुकाकर करते हैं। तो ये क्रॉस कर, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। देन कम्युनिकेशन स्टॉपर, किसी को हम जज करने लगे या उसको ब्लेम करने लगे या क्रिटिसाइज करने लगे या थ्रेटन करने लगे, प्रीचिंग, ऑर्डरिंग, शेमिंग, ये सब चीजें अगर करते हैं तो इनसे आपस में कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है, गुड कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? गुड कम्युनिकेशन होता है कि जो हमने सही मतलब जो मैसेज है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर गलत मैसेज जो है वो, अगर मैसेज ना दिया गया उससे उससे भी खराब होता है। यानी गलत मैसेज नहीं देना चाहिए, अगर खराब मैसेज है तो भी जो है, तो इट हैज टू बी एक्यूरेट। टाइमली का मतलब होता है कि अगर कोई मैसेज पहले या बहुत लेट में आया तो उससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो इसको टाइमलीनेस भी होना चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन, हु नीड्स टू नो व्हाट, यानी कि किसको क्या जानकारी चाहिए वो चीज ही उसको देनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा जानकारी देने से कोई मतलब नहीं है। और ये भी कंफर्म कर लेना होता है हम लोगों को कि सही व्यक्ति तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि नहीं। और इन सब का कोऑर्डिनेशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिनको जो चीज चाहिए वो ज्यादा ओवरबर्डन ना करते हुए नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो इन सब को मिलाकर के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन। अब रिस्क प्रोबेबिलिटी पे भी देख लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस जो है वो कभी कभी बहुत हाई होती है, और लेवल ऑफ इम्पैक्ट कुछ रिस्क का बहुत हाई होता है, कुछ का लो होता है। तो जो ऐसे रिस्क हुए जिनका लेवल ऑफ इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, यानी कि उसकी प्रभुत्व क्षमता, उसके प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा है, और उसको होने का की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसको होने की जो का की जो संभावना है वो भी बहुत ज्यादा है, तो हमको ऐसे रिस्क को एड्रेस करना होता है। हायर रिस्क नीड फॉर हाई रिस्क रिस्पॉन्स प्लान। तो इसके लिए जब हमारे अगर कोई पॉजिटिव चीज हो रही है, पॉजिटिव रिस्क है जिसका हाई लेवल ऑफ इम्पैक्ट भी है, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा है और बहुत ज्यादा उसकी होने की संभावना भी है, तो ऐसे पॉजिटिव रिस्क है उनको शेयर करना चाहिए या एक्सप्लॉइट करना चाहिए या उसके इन्हांस करें जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन अगर निगेटिव कोई रिस्क है तो ऐसे रिस्क को हमको अवॉइड करना है जिससे कि वो पोटेंशियल प्रॉब्लम ना हो, या फिर उस रिस्क को किसी और को ट्रांसफर कर देना है जिससे इस प्रोजेक्ट पे उसका फर्क ना पड़े, या फिर उसको मिटिगेट करना है, यानी कि ऐसे मेजर्स लेने हैं कि वो रिस्क होने की संभावना कम हो जाए। और या एक्सेप्ट करेंगे भाई कुछ रिस्क तो होंगे ही, तो उससे जो है हमको उसके लिए तैयार रहें फिजिकली, मेंटली।
अब स्टेक होल्डर जो है इफेक्टिवली इंगेज करने के लिए कम्युनिकेशन इज द की। हम लोग 90% 95% क्या काम कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, पता चाहे हम कंप्यूटर पे या बोल करके या इंटरेक्ट करके, तो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की। तो कैसे मैनेज करना है कम्युनिकेटर स्टेक होल्डर्स को, कि वी हैव टू हैव द नेटवर्क एंड शेयर, वी हैव टू लिसन केयरफुली, वी हैव टू इफेक्टिवली, जैसे स्टेक होल्डर इफेक्टिवली के लिए नेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। और रिस्पेक्ट होता है कि गिव इट टू गेट इट, यानी कि हमको जो रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे। अब स्टेक होल्डर्स जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके इंटरेस्ट, तो जो स्टेक होल्डर का मतलब आप लोग समझ गए कि जिनको प्रोजेक्ट जो है वो बिहाफ पे प्रोजेक्ट करना है जिनके लिए हेलो, स्टेक हाँ, होल्डर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जो जो हु आर इम्पैक्टेड बाय अ प्रोजेक्ट और हु मे इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट। ऐसे स्टेक होल्डर्स जो हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनका हाई पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर इन्फ्लुएंस करते हैं उस प्रोजेक्ट को खत्म करने में, बंद करने में या चलवाने में, पॉजिटिव या निगेटिव। और कुछ लोगों के स्टेक होल्डर्स रहते होते हैं, इनके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं या बहुत कम इंटरेस्ट होता है। तो कुछ लोगों के पावर ज्यादा होते हैं और इंटरेस्ट कम हो सकता है, कुछ लोगों के इंटरेस्ट ज्यादा होता है लेकिन कोई पावर नहीं होता उनका। लेकिन जिसमें जिनके हाई पावर हैं और जिनका हाई इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को हमको स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। ये जो रेड है, दिस इज द एरिया वेयर वी हैव टू इन्फ्लुएंस आवर अथॉरिटी। तो इसमें ऐसे जिनका हाई पावर है और जिनका हाई इंटरेस्ट है उनको मैनेज करना क्लोजली, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और अगर पावर ज्यादा है बट इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना होता है, वी हैव टू कीप देम सेटिस्फाइड, कि उनको इस प्रोजेक्ट से जो भी उनको एक्सपेक्टेशंस हैं दोज आर मेड गुड। अगर उनके पावर कम है लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, उनको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैनेज हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले लोगों को ही टैकल करना इंपॉर्टेंट है। जो लो पावर और लो इंटरेस्ट वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मॉनिटर सिर्फ करते रहें, ताकि वो हाई इस वाले या किसी और ग्रुप में ना शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव टू प्लान एट द स्टार्ट। अब इसमें जो जो कुछ भी हम लोगों ने बताया, इनमें आप लोगों ने देखा कि कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट जो है वो बहुत जरूरी है। टेनेट्स ऑफ कोड जो है कि ऑनर इज डू व्हाट इज राइट एंड ऑनरेबल, सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ, responsibility is taking ownership of the decisions you make or fail to take, the action you take or fail to take, the consequences of that result. Then respect, show high regard for yourself, others and resources. Fairness is make decisions and act impartially. Honesty, understand the truth and act in a truthful manner. तो ये जो एक चीजें हैं जो हम सभी लोग टू द वेरिंग डिग्री फॉलो करते हैं, हो सकता है थोड़ा फॉलो करते हो सकता है बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, लेकिन जितना बेहतर कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे उतने ही प्रोजेक्ट पे भी प्रोजेक्ट के जितने आपके सहयोगी हैं, कोलीग्स हैं, उनका सहयोग मिलेगा और उतना ही और प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपर पूरे होंगे। तो अब इसमें हम लोगों ने आज जो है देखा, एक तो ये कि जो आई गॉट कर्मयोगी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज बिल्डिंग के या टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट लर्निंग के या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के, ये इनको ज्यादा से ज्यादा आगे आने वाले समय में हम सब लोग को यूज करना है। मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, यानी प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पर्ट चार्ट, एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमावेरा, ये बहुत जरूरी है। एंड परसेंटेज ऑफ ओवरऑल फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस प्लान्ड एंड एक्चुअल प्रोग्रेस अचीव अप टू डेट, ये जो है मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए भी जरूरी होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, प्लान करते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि ये प्रोजेक्ट, एक जोक था इसी पे कि किसी ने बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा, तो उसने बोला 3 महीने, 3 महीने में हो जाएगा। फिर उसके बाद से 6 महीने बाद फिर रिव्यू के दौरान फिर वही बात आई कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा, सेम प्रोजेक्ट, तो उसने बोला 3 महीना।
तो उस पे उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है आपके उसमें, कि 3 महीना मेंटेन्ड है, आप चाहे जब कभी भी उसको रिव्यू कर लें। तो ऐसा ऐसा नहीं रखना है हमको। परसेंटेज फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस प्लान और एक्चुअल में, और इसमें परसेंटेज ऑफ प्लान कमिटमेंट की, जो पिछली बार कमिटमेंट किया था उसका कितना परसेंटेज आपने कंप्लाई किया, ये चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस में ये सारी चीजें, वरना आप देखेंगे कि हर बार जो है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल प्रोजेक्ट्स जो है आगे बढ़ते रहते हैं, प्रोजेक्ट क्रीप होते रहते हैं। दैट वी हैव टू रियली कंट्रोल। फिर प्रोजेक्ट में एक तो L1 की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके लिए क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन का QCBS का एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर का एक लेटर आया हुआ है, और उसके बेसिस पर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है अपने प्रिंसिपल्स जो है वो बना रहे हैं, अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। तो इसमें जिन किसी का भी हाई स्टेक्स में प्रोजेक्ट्स हों या बड़े प्रोजेक्ट्स हों, उनमें QCBS को भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में प्रयास किया जा सकता है। जो टेक्नोलॉजी है उससे कैसे रिमोट साइट्स को कनेक्ट करना है, इसमें क्लाउड बेस्ड डैशबोर्ड, लाइव व्यूज ऑफ साइट मॉनिटरिंग, IoT के थ्रू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग थ्रू प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड वगैरह, ऐसा करके अब आगे आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज करना है फॉर कनेक्टिंग टू द रिमोट साइट्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को डिप्यूट करके भी थर्ड पार्टी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि एक तो पीपल को मैनेजमेंट करना जो है बेसिक इंटीग्रेशन पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और ये एक अपने तरह में एक कला है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी अपने एक में एक कला है। इसमें इस कला में जो एक्टिविटीज हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो समयबद्धता है, इनको मैनेज करना है। ये अपने आप में इस कला को कितना पारंगत होता है उतना ही अच्छा वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो आज हम लोग ने जो सीखा वो ये था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टर्म्स, प्रोजेक्ट चार्टर, ट्रिपल कंस्ट्रेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, गोल प्लेटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, ये हम लोग ने कुछ सीखा या नहीं, कोई बताएगा? तो अभी जो इंटरेक्टिव सेशन में पूछ लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और 5 प्रोसेस ग्रुप्स जो थे, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग, इनके बारे में हमने सीखा। अब हम सब लोग बता पाएंगे कि क्या ये 5 प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं। और 10 नॉलेज एरियाज जो हैं, टाइम, कॉस्ट, स्कोप, क्वालिटी, देन रिस्क, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, प्रोक्योरमेंट एंड स्टेक होल्डर्स, और इनका इंटीग्रेशन, ये 10 नॉलेज एरियाज हैं। और कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में हमने सीखा। तो ये सब चीजें जो है हमने सीखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने बहुत सरल भाषा में जो है सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को सबको समझाया, और डे टू डे एग्जाम्पल के साथ समझाया, जो कि हम लोग इन जनरल कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते रहते हैं, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट हमको दिखता रहता है। तो आपने वो सारे कांस्टेंट को बहुत विस्तृत रूप में बहुत अच्छे से समझाया, और हमें उम्मीद है कि जो है जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको प्रोजेक्ट अब अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होगी।